Please take us through to your story, your childhood, your family, and how finally cricket happened. Cricket is like passion for me. So I came from Ratlam actually, from a small town. I came here. I started playing under Sanjay Jagdale sir at CCI, and then from there, I think I started playing A grade tournaments and start scoring runs there. Then you get picked. Then I didn't picked up for under 16 team. Then I picked up for under 19 when I was 17. So it was great time when I used to practice at CCI and sir used to coach us at that time. So uh, then I got a break in Ranji Trophy when I scored 180 against Uttar Pradesh. I got 100 before lunch on my third Kuch Bihar Trophy match. So that was great time. First day before lunch, I got 128 not out. So then I got picked up for Ranji Trophy team, and from there, I think Dada was the coach at that. Nilose Dada was the coach. So then I started Uh, playing in, under him. in very Sorry. young age, you came to Indore from Ratlam. How difficult it was. When you have passion for a game, I don't think it's difficult. You don't find any difficulty living alone when you have passion only for cricket. Was it always cricket, or did other sports fascinate you too? Only cricket. Only cricket. Nice. Only. Were you always better and wicket keeper, or did you start off with some other role? No, I was wicketkeeper batsman from my childhood only, but my keeping skills was not that great. And I used to more focus on batting. But after some year in Ranji Trophy, I realized that the keeping is the most important part. So then I improved my keeping and I became wicketkeeper batsman. You Naman, made and you made the Ranji Trophy debut in 2001. Please Yes. tell us yeah, about your junior cricket journey, which helps you to get Ranji Trophy cap. Junior under 19, I played only under 19, and I played Kuch Bihar Trophy. I got runs and in I think my first year we our MP team has played the Kuch Bihar Trophy final, and in that year I think it was wow, 99 or some. okay, fantastic. You played 146 first class matches and score 900, 753 5,753. runs, 22 centuries, 55 half centuries, and also affected 471 dismissals behind the stumps. Uh, how you managed to play in very competitive atmosphere for very long period and performing as well? I think it is very important. So, when you focus, I think it all depends on your focus, how focused you are. So I was very focused from my. I think when I was 12, 13 year, I was very focused to play at the highest level. Wow, Until last year, I was focused to play again at the highest level. So I yes, think your aim should be always high to play at the highest level. That is more important for each and everyone who is playing cricket. I think you should be aim to play for India. So if your focus is very high, your routines become automatically or more disciplined. You will be moved towards more discipline when you have higher goal in your life. So okay, better set higher goals and keep working for that. okay. You Naman, made an international debut in the year 2010 for ODI and T20s. What was your feelings then when you get to know about your selection?
I think I was very happy. So in 2010, I got selected. I got 300s in one day Vijay Hazare one day tournament, and I got around 400 runs in IPL. Then only I get picked up for Indian team when Dhoni decided to rest in that Zimbabwe series. So I was picked up. So I was very happy. You also played the 113 IPL matches for Rajasthan, Sunrisers Hyderabad, and Delhi as well. What was your experience and how IPL plays an important role for youngsters? I think in these days, I think IPL plays very important role in making youngsters, because somehow when you get a good contract or when you get picked up for IPL team for match, how they what their work ethics are, how disciplined they are, how sincere and serious they are about their game. So I think it is more if a player want to play, if a player want to learn from IPL, I think that's the best thing for me when it happened. And plus you get little more mental relief that now you have from monitoring point of view, if you see you get good contracts, so you are more secure in your life, so you can become more, you are more focused. If you want to put your 100%, 110% in your practice session, you can do that. So I think if player get contract or good contracts or something, I think they should be more focused towards their goal in the life. That's true, Aman. That's true. आप कीपिंग भी करते थे और ओपनर बैट्समैन भी थे, तो कई बार ऐसा होता था कि 4 दिन के 2 दिन फील्डिंग करना है, फिर 10 मिनट ब्रेक के बाद बैटिंग करने जाना है, तो इसको कैसे मैनेज कर पाते थे दोनों को? आप भी मेरे साथ थे राजेश भाई। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फिटनेस और डिसिप्लिन। आई थिंक लाइफ में डिसिप्लिन और फिटनेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं विकेट कीपर था, इतना कीपिंग करता था, तो मैं एंजॉय करता था। बेसिकली मैंने कभी भी ये नहीं करा कि अरे मैं थक गया हूँ तो मैं ओपन नहीं करूंगा, बिकॉज आई लव टू ओपन एंड आई लव टू कीप। सो आई लव। कभी मेरे को प्रॉब्लम होती थी बाद में कि थोड़ी सी बैक टाइट होती थी, जो तो मैंने एंजॉय किया उसको, बहुत एंजॉय किया। कम से कम 12-15 साल तक मैंने ये रोल किया और मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया उसमें। 10-11 साल तो अपन लोग साथ में रहे हैं, काफी कुछ बहुत नजदीक से मैंने देखा है आपको, और कई बार बहुत अच्छी इनिंग्स भी आपके बहुत अच्छे, बहुत एंजॉय किया आपके क्रिकेट को साथ में रह के। और दूसरा मैं एक चीज पूछना चाहता था कि 2011-12 में हम लोग जब कैलकाटा गए थे खेलने, हमारा मैच था बंगाल से, तब बंगाल ने फर्स्ट इनिंग में हम 500 के आसपास कुछ रन किए थे और हम चेस कर रहे थे। उस इनिंग में फिर आपने चेस करते समय सेंचुरी किया था आपने और मोहनीश ने, तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था, कैसे चेस करना है, कैसे हम उसको कर पाएंगे चेस, क्योंकि 500 बहुत ज्यादा स्कोर था वो। 500 रन कभी भी इतने रन बन जाते हैं तो दिमाग में जो भी रहता है 500 रन का कभी भी ध्यान में नहीं होना चाहिए कि अपने को 500 रन, क्योंकि अगर अपन 500 का सोचेंगे तो अपन खुद ही प्रेशर बना लेते हैं। तो बेसिक जो नया बॉल था उनका अशोक डिंडा, और वो बॉल डाल रहे थे, तो 1 बॉल एट ए टाइम आपको खेलना है। और बेसिकली प्लान यही था कि मेरे को जैसे कि एक रोल असाइन करते हैं, हमारे कोच थे मुकेश साहनी सर थे, बहुत सारे कोच के साथ खेला, तो उन सब लोगों ने जैसे कि आपको एक जॉब असाइन किया जाता है कि मैं जैसे विकेट कीपर बैट्समैन हूं तो मेरा काम है कि जो भी एजेस लगेंगे वो मुझे पकड़ना है। प्लस अगर मैं ओपनर हूं तो मेरा काम है कि मुझे टीम को अच्छा स्टार्ट देना है, और अगर मैं अच्छा स्टार्ट देता हूं तो मेरे को उसको कन्वर्ट करना है। तो ये अपने 3-4 जो चीजें होती है ये अपने दिमाग में होना चाहिए हर प्लेयर के, कि जो भी रोल है, आप स्पिनर हो, आप बैट्समैन हो, आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, तो आपको आपका रोल प्ले करना है। एक्चुअली मेरा रोल उस समय ये था कि ओपनिंग में हमें अच्छा पार्टनरशिप करना है, और पार्टनरशिप हो तो उसको बड़ा लेके जाना है, और बड़ा हो जाए तो उसको और बड़ा करना है, और बड़ा हो जाए, कोई अगर आउट होता है, कोई नया आता है, तो उसके साथ फिर रीस्टार्ट करना है पार्टनरशिप। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है। तो उस दिन हमने एक्चुअली 2.5 दिन ऑलरेडी मैंने कीपिंग कर लिया था। उसके बाद 2.5 दिन हम लोगों ने फील्डिंग किया था उस मैच में, और उसके बाद फिर मैंने 1.5 दिन फिर बैटिंग भी किया था, और फिर वापस हमारी फील्डिंग आ गई थी अगले दिन मॉर्निंग में। तो वो तो बहुत अच्छा मैच था। मैं 4 दिन ग्राउंड में ही था। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि आप 4 दिन ही ग्राउंड में थे। वो मेरे को बहुत, मतलब आपकी बहुत अच्छी इनिंग से एक वो इनिंग थी मेरे जो बेस्ट इनिंग थी। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग करी थी मैंने।
तो बस यही था कि लंबा लेके जाना है, अगर आप सेट हो गए हो तो उसको इजी नहीं देना है, अपना विकेट नहीं देना है, और आप जैसे जैसे आप विकेट नहीं देते हो और आप खेलते चले जाते हो तो बॉलर भी थोड़ा सा डीमोरलाइज होता है कि यार विकेट नहीं मिल रहा है, तो उसको वही वाली सिचुएशन पे लेके आना है, जो अपना गेम प्लान है उसको वो सिचुएशन पे आता है तो फिर मजा आता है उसके साथ खेलने में। तो ये सिंपल है। तो जो भी लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं यहाँ पे, वो ये चीज का ध्यान रखें कि कुछ भी एक जॉब दिया है, वो जॉब को अपने को पूरा अपने को कैसे कंप्लीट करना है, उसमें कैसे अपने को कैसे स्ट्रांग होना है, जो भी आपका गेम प्लान है, जो आप स्किल करते हो उस स्किल को कैसे अपने को मास्टर करना है। कभी कभी आप स्पिनर हो और नए बॉल से विकेट नहीं मिले, लेकिन आपका काम है विकेट निकालना, तो आपका जो भी बेसिक होता है वो राइट रखना है। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं। और इसके अलावा आपको कौन सी और इनिंग बहुत अच्छी लगती है जो आपने बैटिंग करी है, जो आपको बहुत अच्छी लगती है आपके इनिंग्स में से? बहुत सारी इनिंग्स हैं जो अंडर प्रेशर में खेला हूं मैं। तो आपने बोला बंगाल के साथ था, उसी साल आप देखेंगे तो उसके पहले वाले मैच में बड़ौदा के सामने मैं 97 पे आउट हुआ था सेकंड इनिंग में। तो वो वाला इनिंग भी बहुत अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो विकेट था ग्रीन, उन्होंने बहुत ग्रीन बनाया था कि हम लोग आउट हो जाए जल्दी तो मैच जीत जाए, है ना। उसके बाद में अपन उसी साल अगर देखेंगे तो अपन उसके बाद दिल्ली गए थे, तो दिल्ली के अंदर वो सेकंड इनिंग में वापस सेकंड इनिंग में अपन फंस गए थे, आउटराइट मैच हारने वाले थे अपन, तो उसमें मैंने डबल 100 किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। बिल्कुल वाली मेरी बेस्ट इनिंग थी। उसके बाद में अपन राजस्थान के सामने अपन गए, अपन फिर ग्वालियर गए, वहां से ग्वालियर में मैंने फिर सेकंड इनिंग में 100 किया था, वो विकेट बड़ा चैलेंजिंग विकेट था, तो वाला मेरा बेस्ट इनिंग था। उसके बाद अगर मैं देखूंगा बड़े लेवल पे देखूंगा तो ऑस्ट्रेलिया गए थे हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया में एक सेकंड इनिंग में मैंने 100 किया था ऑस्ट्रेलिया ए के सामने। ऑस्ट्रेलिया में तो आपका 2014 का हम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस था, 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज और उसमें एक डबल सेंचुरी। तो उस समय क्या माइंडसेट चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट इतने बाउंसी विकेट होते हैं, फास्ट विकेट होते हैं, और उसमें आपने इतने कंटिन्यूस 3 सेंचुरी, एक डबल सेंचुरी? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि वहां पे मैं 7 नंबर पे बैटिंग कर रहा था, वहां मनोज तिवारी कप्तान थे हमारे, तो बोले कीपर हो आप तो आपको 7 नंबर पे खेलना है। कभी ऐसा सोच के नहीं बनाया मैंने। और हमारे विकेट भी हो गए थे 7 हमारे। आई थिंक मेरी बैटिंग आई जब वी आर आई थिंक 150 और 140 फॉर 5 थे, या हाँ 140 फॉर 5 थे आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर 140 फॉर 5 थे और मनोज खेल रहा था और वो 80 रन पे स्टंप हो गया था। तो मेरा यही था कि यार यहाँ से कैसे अपन लंबा लेके जा सकते। पता था कि बॉलर थक जाते हैं सेकंड डे, हम लोग फिर मेरी बैटिंग आई थी डे के लास्ट में, फर्स्ट डे। सेकंड डे अगर मेरे को ये बात पता थी, यस, तो अगर मेरे को पता है कि वो थका है, वो बॉलर एक स्पेल डालेगा और फिर हट जाएगा, तो आई कैन प्ले, मतलब आपको माइंड से खेलना आना चाहिए, 4 डे के अंदर आपको माइंड रीड करना आना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैंने करी, तो मैं 12 बजे तक मेरा शायद 100 ही बना। फिर उसके बाद मेरे को नहीं लगा था कि मैं 200 बना पाऊंगा, क्योंकि मैं प्रज्ञान ओझा के साथ बैटिंग कर रहा था, वो 10-12 रन बनाए उसने, फिर मैं चांस फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा चांस लेके खेलता हूँ, चांस लेके खेलने लगा तो 150 हो गए। 150 के बाद प्रज्ञान आउट हो गया, फिर बुमराह आया बैटिंग करने, तो बुमराह के साथ बोले, फिर बुमराह ने बोला कि मैं खड़ा रहूंगा, आप जैसे खेलना है आप खेलो। मैं नॉर्मल बैटिंग करता रहा, उनको ऐसा लगा कि just it's all about how to play with the opposition mind. I think it is more important कि आप opposition के mind के साथ कैसे खेलते हो। तो ये आप भी अगर खेलते जाओगे धीरे धीरे आता जाएगा। मेरे को विकेट देना ही नहीं है, वो मेरे को 1 रन लेने को तैयार थे तो मैं 1 रन ले रहा था, बुमराह आता था तो बुमराह भी 1 रन ले लेता था। ये बात मेरे को मुकेश सर ने एक बार समझाई थी कि कभी भी पैनिक नहीं होना है, वो नहीं होना है, तो वो मैंने याद रखा वो चीज को। तो फैंटास्टिक यार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके कंटिन्यूस 3 सेंचुरी लगाना, उसमें एक डबल सेंचुरी लगाना, और वो भी उस टफ कंडीशन में जब हमारे 5-6 विकेट गिर चुके हैं और फिर नीचे के बॉलर्स को लेके साथ में खेलना, इतने रन बनाना। तो बच्चों, आप इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनो कि नमन सर क्या बता रहे हैं, उनने कैसे अपनी इनिंग बिल्ड करी और कैसे प्रेशर सिचुएशन में हैंडल किया सारी चीज़ों को, कैसे हमारी इनिंग को हमको बिल्ड करना रहता है, सामने वाली टीम के साथ हमको कैसे खेलना रहता है, उनके माइंड गेम कैसे खेलना रहता है, और भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। Captaincy is very crucial role in cricket. You lead the MP senior team and India A team in Australia tour as well. How difficult task it was for you? एक्चुअली बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कैप्टनसी, बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कैप्टन बनते हो तो आपका जो ध्यान रहता है वो थोड़ा सा इधर उधर भी जाता है कि क्या टीम क्या बनानी है, क्या खेलना है। तो मेरे हिसाब से
कैप्टनसी थोड़ा मतलब मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग लगा। बाकी और एज फार एज इंडिया ए और वो कंसर्न था, तो जोन की कैप्टनसी और इनकी कैप्टनसी डिफिकल्ट नहीं थी, क्योंकि वहां पे जो लड़के थे वो काफी मैच्योर्ड थे, और मैच्योर्ड लड़कों के साथ कैप्टनसी करना आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आप इतने उनसे क्या होता है कि आप इतना आपका जो रिलेशन होता है वो इतना जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, उसने बॉलिंग अच्छा नहीं किया तो उसको हटा दिया, वो खराब खेला तो उसको बाहर बिठा दिया, ये कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब अपन एसोसिएशन और उनके साथ आते हैं तो अपने पास उतना ही, अपने पास लिमिटेशन है, अपने पास कोई चीजों का लिमिटेशन रहता है, कि ऑलराउंडर का अपने पास लिमिटेशन है, अपने पास यही 2 ऑलराउंडर हैं जो मुझे लगता है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है उनसे परफॉर्म कराना, और मेरे को बड़ा डिफिकल्ट लगा। तो कैप्टनसी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें अगर कोच का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोच, आई थिंक कोच का रोल जो रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो मेरे को लगता है कि समहाउ मतलब कैप्टेंसी स्टेट जो छोटे बच्चों का रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उनको समझाना रहता है, आपको अपना भी परफॉर्मेंस करना है। लेकिन ऐसी थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आप जाते हो तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि सब लड़के मैच्योर रहते हैं, टीम अच्छी रहती है, सबको अपना जॉब पता रहता है, तो वो एक लिटिल मोर इजियर देन स्टेट। तो दोनों चीजों का अपने अपने प्लस माइनस है। बट एनीवे मैंने एंजॉय किया अपना जो भी कैप्टनसी का रोल मैंने जो प्ले किया, मैंने कोशिश किया कि बेस्ट जो बेस्ट से बेस्ट दे सकूं मैं, तो वही। लेकिन इतना कोई खास आ नहीं पाया, एमपीसीए के लिए इतना खास नहीं आ पाया। बाकी ईरानी ट्रॉफी के अंदर हम लोग चैंपियन हुए, इंडिया ए में ठीक ठाक था, जोन की कैप्टनसी करी, वहां पे हम लोग चैंपियन हुए। तो अलग अलग उसके अलग अलग रिजल्ट्स और अलग अलग पॉजिटिव अलग अलग नेगेटिव आते हैं। तो मेरे हिसाब से कैप्टनसी जो भी लड़का करता है, आई थिंक वो अपना भी परफॉर्मेंस पे फोकस उसका होना चाहिए ज्यादा। In 2014, you scored 3 consecutive hundreds on India's A Tour of Australia. After that, you got your international maiden call for Test after 5 years. Had you expected that you will get a chance to play an international cricket again? Yes. I was very sure. and I was working. And मैं कितनी बार अगर आप देखोगे तो ये राजेश भाई भी इधर ही हैं और मुकेश सर भी, मैं उनको बोलता था कि मैं खेलूंगा वापस। बिल्कुल अगर नहीं होता है तो आप मुकेश सानी सर से भी ये बात पूछ सकते हो और इनसे भी पूछ सकते हो। मेरी प्रिपरेशन ऐसी रहती थी, हर दिन एवरी डे मेरी प्रिपरेशन यही होती थी कि मुझे खेलना है। एवरी डे मैं वैसे ही प्रिपेयर करता था। मेरे को याद ही नहीं कि मेरा ऐसा कोई दिन रहा कि मैंने ऊपर के लेवल के लिए प्रिपेयर नहीं करा। जब तक मैं लास्ट मैच जब तक मैं खेला एमपी के लिए, मैंने कभी भी ये सोचा ही नहीं आज तक कि मैं लास्ट मैच में भी, अगर वो 45 पे मैं रन आउट हो गया था, एक्चुअली मैंने ये डिसाइड, वो अय्यर जो था वो बैटिंग नहीं कर पा रहा था ग्रीन विकेट पे, तो मैंने कहा मैं स्ट्राइक ले लेता हूँ, और मेरी बैक थोड़ी टाइट थी, तो वो मैं डायरेक्ट हिट पे रन आउट हो गया। वो वरना वो वाले मैच में भी मैं 100 बनाता, वो मैच में भी मैं 100 बनाता, और मेरा एम वही था कि मैं वहां से भी मैच जिता देता, मैं वो मैच भी मैं आराम से मैच जिता देता। अगर मेरी बैक थोड़ी सी, अगर अपने फिजियो थोड़ा ध्यान रख लेते बैक का, तो मैं वो मैच में भी 100 बनाता। रन तो मैं हमेशा बनाता, आज भी जाऊंगा, आज भी रन बनाऊंगा मैं। फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा। मतलब मैंने तो खैर बहुत नजदीक से देखा है इनको मेहनत करते हुए, कितनी मेहनत करते थे, बैटिंग करते थे, अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करी, उसके बाद फिर आ गए कि चलो कीपिंग की प्रैक्टिस करनी है, कैचिंग करनी है। कैचिंग भी ऐसा नहीं कि 2 4 5 6 कैच पकड़े और चले गए, कम से कम 2 3 300 कैचेस पकड़ते, सिंगल हैंड कैचेस पकड़ना, डबल हैंड। मैं खेलता उसी के लिए था राजेश भाई। मेरे को टेस्ट मैच में मैं कैसे कीपिंग करूंगा, मैं वही सोच के करता था कि अगर मेरे को टेस्ट मैच खेलना है तो मैं कैसे कीपिंग करूंगा, मैं वनडे खेलूंगा। तो मैंने प्रिपरेशन पूरी लाइफ वैसे ही करी। बिल्कुल हालांकि चांस कम मिले मेरे को, जिस हिसाब से जो मैंने स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद में, तो मैं श्योर था, थोड़ा डिसअपॉइंट भी था कि अगर कोई दूसरी स्टेट से होता, ये अगर कोई लड़का होता दूसरी, बॉम्बे से, दिल्ली से होता, तो कम से कम 4-5 सीरीज आराम से खेलता। मतलब कि अपन ब्लेसिंग बोलेंगे या डिसगाइज, जो भी था, जैसा भी था, आई थिंक मैंने अपना चांस जो भी मैं अपना करके ले सकता था, और रन बना के लिया मैंने। रन बना के मैंने अपना चांस जैसा भी छोटा लिया बड़ा लिया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया जितना जो मैं कर सकता था। तो ध्यान रखना, जितने भी लड़के सुन रहे हैं, लड़कियां सुन रहे हैं, कि अपनी तरफ से बेस्ट होना चाहिए लाइफ में। आगे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं उधर मेहनत कर लेता तो ऐसा रहता, या मैं ऐसा कर लेता तो वैसा होता। मुझे कोई भी कुछ भी नहीं है मेरे को उसमें। तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं नमन सर, और पूरा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनने कैसे अपनी तैयारी करी, क्या किया और कितनी मेहनत करी है सारी। तो आप लोग खेल रहे हो, अपना समय दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो,
तो अपना एक एम लेके चलो कि मेरे को इस लेवल पे खेलना है, मेरे को यहाँ खेलना है, उस हिसाब से मेहनत करना है। नमन, जब खेलना स्टार्ट किया था, जब इंदौर आए थे रतलाम से, तब ये दिमाग में हाँ सोच थी कि मैं इंडिया खेलूंगा। हाँ, मैं बताता रहा हूँ, मैं जब से छोटा था मैं एक ही बात को सोचता था, एक ही ड्रीम था हाँ, मेरा कि मुझे इंडिया खेलना है। वाह यार, मैं बहुत आता ही भी था तो अच्छा। अच्छा। हाँ मैं 13 साल का था, मैं उठ के जब प्रैक्टिस पे आता था वहां पे, तो मैं यही सोचता था कि मेरे को इंडिया के लिए खेलना है। हाँ। मेरी सोच ही वही थी, बस मुझे इंडिया के लिए खेलना है। उसके बाद जब 16 साल की एज में आप रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुए, और उस समय रणजी ट्रॉफी टीम में आप काफी जूनियर प्लेयर रहे होंगे, बाकी के जो है बहुत काफी सीनियर प्लेयर रहे होंगे, जैसे दादा है, अमिताभ बिहा है, हीरू भाई है, राजेश चौहान होंगे। तो वहां जाके कुछ ऐसा प्रेशर फील होता था कि नहीं यार, मैं कितने बड़े लोगों में आ गया हूँ एकदम से? तो प्रेशर थोड़ा सा फील, वैसे तो नहीं होना चाहिए प्रेशर आपको। आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो आप थोड़ा सा प्रेशर नहीं होता था, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन कैसे करेंगे वो, क्योंकि इतने सीनियर हाँ। प्लेयर थे। पर मेरे को पता था कि अगर मैं बैटिंग करूंगा तो मैं कम्युनिकेट कर लूंगा। आई थिंक क्रिकेट के अंदर मुंह से गुड। कम्युनिकेट करना कम जरूरी है, आपका अगर स्किल से कम्युनिकेट करोगे आप, कि हाँ। अगर आप अच्छे हो तो आप उनकी पिटाई लगा के दिखाओ, सिंपल सी बात है। भले 14 साल का लड़का हो या 17 साल का लड़का हो या 20 साल का हो, अगर आप जब सीनियर्स की पिटाई करोगे नेट में, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी इम्प्रेस करना है वो नेट पे और मैच में करना है। सिंपल है कि आपका स्ट्रोक प्ले और आपका कॉन्फिडेंस आपके गेम के ऊपर इतना ज्यादा होना चाहिए कि ऑटोमेटिक सीनियर आपसे बात करेंगे अगर आप अच्छा खेलोगे। मगर एट द सेम टाइम जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिसबिहेव ना करे और थोड़ा सा अपना डिसेंसी फॉलो करे, और अपने गेम से ही आपको जो भी करना है आपके गेम से करना है। वो प्रेशर थोड़ा आता है कभी कभी, तो इतना हाँ। ज्यादा सोचना नहीं है, बॉल पे ध्यान देना है, दैट्स इट। मैं ये सोचता था कि बॉल पे ध्यान देना है, नेट पे ध्यान देना है, अपने अपने वर्क इथिक्स पे ध्यान देना है। जो आपका वर्क इथिक आपको यहाँ तक लेके आया है उस पे ध्यान देना है, कैचेस पकड़ना है, स्लिप कैचिंग करना है, बैटिंग करना है आपको। कीप योर सेल्फ बिजी। 4 घंटे का नेट है तो ऐसा होना चाहिए कि 4 घंटे हैं तो 4 घंटे कब निकल गए पता नहीं पड़ना चाहिए। क्या बात है नमन। तो बच्चों, देखो सीखो नमन सर से कि जहां भी आप जा रहे हो, जिस लेवल पे भी जा रहे हो, आपको परफॉर्मेंस करना ही है। आपको जो भी दिखाना है, अपने रनों से दिखाना है, अपने विकेट से दिखाना है। किसी के मुंह से बोलने से या कुछ नहीं होता है। जब आप परफॉर्म करोगे तो कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, और आप अपने आप ऊपर के लेवल पे जाओगे। So my next question is, whom you been idolizing? आइडियलाइज एडम गिलक्रिस्ट, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर। How different is domestic cricket and international cricket? बहुत फर्क है। जो डिवीजन में और फर्स्ट क्लास में फर्क है वही फर्क फर्स्ट क्लास में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था दोनों में मैनेज करना? प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको प्रिपेयर वहीं के लिए करना है, ऊपर के लेवल के लिए, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप प्रिपेयर रणजी के लिए करोगे, डिवीजन के लिए करोगे, तो हर जगह दिक्कत आएगी। टॉप लेवल के लिए प्रिपेयर करना है। मोस्ट फेवरेट क्रिकेट मेमोरी? मैं टेस्ट खेला, जब आई रिसीव टेस्ट कैप फ्रॉम विराट, सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, क्योंकि आप पूरी लाइफ इसी के लिए खेलते हो। टेस्ट खेलना है, वनडे खेलना है, यही आपके ड्रीम रहते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग, जब मैं अब टेस्ट खेला 15 साल के बाद में टेस्ट खेला। मैं 1 साल से लेके 15 साल तक ट्राई किया मैंने टेस्ट खेलने का, 15वें साल टेस्ट खेला, पर उससे हिम्मत नहीं आ रही कि मैं ये आपकी आपके आपकी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए और आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि मैं खेलूंगा। हाँ, please tell your success mantra to our aspiring cricketers. वर्क हार्ड, work hard, that's it. Only one mantra, no other mantra. Focus, discipline and work hard, that's it. Keep doing it for 10 years. You will find success. बच्चों सुन लो अच्छे से, वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड। कोई इसके अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और बहुत जम के मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा ग्राउंड पे। 1 घंटे 2 घंटे की मेहनत से कुछ नहीं होगा। आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगना पड़ेगा। पूरे टाइम आपको ग्राउंड क्रिकेट के बारे में सोचना पड़ेगा, सोते जागते खाते हुए सब क्रिकेट क्रिकेट, तो आप ऊपर बढ़ पाएंगे। मैंने देखा है नमन सर को ये सारी चीजें करते हुए, क्योंकि वो जैसे ही ग्राउंड में एंटर होते थे, वो जब तक ग्राउंड से बाहर नहीं निकलते थे, उनके हाथ से
बॉल निकलती नहीं थी। कीपिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, कई बार फील्डिंग की प्रैक्टिस भी करते थे, कैचिंग, सारी चीजें। तो कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी इन सब चीजों के लिए। नमन, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने सारे फॉर्मेट खेले, T20 भी खेला, वनडे भी खेला और डेज मैचेस भी खेले, तो इन सब तीनों को एक साथ जब आप खेलते थे तो कुछ डिफिकल्टी जाती थी माइंडसेट में या हमको चेंज करने में? थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। 4 डे और 1 डे और T20 तीनों अलग अलग फॉर्मेट है। आई थिंक तीनों को प्रिपरेशन, लेकिन अगर आप बेसिक, अगर आपका राइट है, बेसिक क्रिकेट का बेसिक राइट होना चाहिए। बेसिक, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप पूरा चीज कवर कर लोगे। आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, जो आपका बेस है वो बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि अगर बैटिंग कर रहे हो तो डिफेंस, ड्राइव, कट, पुल, अगर ये आपका चारों चीजें अच्छी है तो फिर उसके बाद में जो आपको बॉल का सेंस हो, फिर आपका ऑटोमेटिक बॉल का सेंस आ जाता है। जब सेंस आ जाता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आई थिंक, पर आई थिंक 3-4 दिन 5 दिन में आप एडजस्ट हो जाते हो। जैसे कि आप ये फॉर्मेट से वो फॉर्मेट पे गए। बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी फॉर्मेट खेलो, रन बनाओ आप। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप किसी भी फॉर्मेट में एडजस्ट हो जाओगे। वेरी गुड। तो बच्चों, ये चीज का ध्यान रखो कि आप लोगों को भी अलग अलग फॉर्मेट्स खेलने पड़ेंगे, लेकिन आपके मेंटल लेवल को आपको बहुत टफ करना पड़ेगा। आप जब भी T20 से वनडे या इनिंग मैचेस में जाएंगे तो अपने आप को, माइंड को ऐसा सेट करना पड़ेगा। तो जैसा आप माइंड को सेट करेंगे वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। So, after long 20 years of a cricket journey, you took retirement on 15 Feb 21 from all forms of cricket. How difficult and emotional decision it was for you? थोड़ा इमोशनल भी था, डिफिकल्ट भी था, लेकिन मेरे पास आगे के लिए और भी आई हैव बेटर प्लान्स। सो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं थोड़ा सा अब मेरा बैक थोड़ा सपोर्ट नहीं करता था 4 डे के लिए। 4 डे में कीपिंग और बैटिंग मेरे को थोड़ा टफ होने लग गया था। तो मैंने ऐसा सोचा कि इतने सारे बाहर T20 टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने सारे लीग्स होते हैं, तो व्हाई नॉट प्ले इन दैट लीग्स। और यहाँ पे कोई यंगस्टर जो भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा इंडिया के लिए खेलना थोड़ा सा मुश्किल लगा मेरे को फिर कोविड के बाद और पेंडेमिक के बाद। क्योंकि क्या होता है कि व्हेन यू क्रॉस 35-36 तो आपको मैच फिट बड़ा रहने के लिए बहुत यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड अगर आपको ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलना है। तो मैंने सोचा अगर एक ही फॉर्मेट खेलूंगा, अगर मैं T20 अगर मैं खेलता हूँ, आई कैन प्ले 3-4 ईयर्स यहाँ से और मैं खेल सकता हूँ। और इतनी सारी लीग्स होती है, वर्ल्ड वाइड लीग्स होती है, तो आई थिंक मैं अगर वहां पे खेलूंगा तो मतलब मेरा क्रिकेट भी वो रहेगा और मेरी बॉडी के ऊपर भी इतना लोड नहीं आएगा। क्योंकि मेरे को थोड़े इश्यूज आने लग गए थे मेरी बैक के साथ में, और थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने लगा था मेरे को। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट प्ले इन दैट लीग्स एंड यहाँ पे किसी यंगस्टर को चांस दिया जाए कि जो क्या बात है, न्यू कमर, जैसे कि मैं आया था टीम में, तो मेरे को न्यू कमर जैसे मैं आया था, तो कोई ऐसा लड़का कि जो प्रॉमिस दिखा के और तैयार हो जाए यहाँ पे 1-2 साल के अंदर और फिर एमपी को वैसे ही सर्व करे। वेरी गुड यार, क्या बात है। मतलब अपनी जगह किसी को देना, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। इतना आसान नहीं होता है कि हम इतने सालों से खेल रहे हैं, कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमारी ये सोच कि ठीक है भाई, अब मेरी जगह कोई और ले ले, वो एमपी के लिए खेले या और आगे ऊपर खेलने के लिए खेले। क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा है अमन। Virat Kohli and MS Dhoni. I think it is not important for you. If you want to play with them, you need to ask question कि how will I play with them? Yeah, so how should I play with them? You need to work hard. Okay. You need to work hard and focus on your work and be disciplined. Okay. Sir, I have a question, sir. I have a question. Yeah. Yes. Tell me. सर मतलब आपने अभी सेशन में बताया था कि एक बैट्समैन के लिए डिफेंस, पुल, कट और ड्राइव्स अच्छे होने जरूरी हैं। मतलब जो बैट्समैन बार बार जो आउट ऑफ फॉर्म रहता है, तो अगर वो अगर फॉर्म में आना चाहे तो उसको कैसे आना चाहिए वापस? रन्स बनाओ ना, डिसिप्लिन। अगेन वही बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन में खेलना पड़ेगा। अगर रन नहीं हो रहे हैं जिस समय, तो बहुत डिसिप्लिन खेलना पड़ेगा कि चांसेस कम से कम लेने। अभी ड्राइव का बोल रहा हूँ, तो अभी अगर आप ओपनर कर रहे हो तो फिर ड्राइव नहीं करना है आपको। अगर आपका फॉर्म खराब है तो ज्यादा ड्राइव नहीं करना है, फिर आपको सिंगल को देखना है। फिर आपको बैकफुट का गेम है वो करना पड़ेगा आपको। सिंगल, हाउ विल यू प्ले सिंगल? क्योंकि अगर आप आगे बैठ के जाओगे, टाइम अच्छा नहीं है तो बॉल पीछे जाएगा वापस।
तो जब भी आप फेलियर हो रहे हो तो आपको बेसिक से आपके जाना पड़ेगा, वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ है जैसे फ्लो में चल रहे ड्राइव मार रहे वो नहीं है, हमको फिर वापस सोचना पड़ेगा कि हम पहले कैसे खेलते थे, हमने जब अच्छे रन बनाए थे तब हम कैसे खेल रहे थे। तो हमको ये सारी चीजें खुद को सोचना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हमको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। या Sir, how should I practice in home because of this COVID-19? How should I practice in home? कितना स्पेस है आपके आपके जो घर पे स्पेस है थोड़ा सा बाहर? Yes, sir. बाहर आपको अगर आपके पास अगर कोटा स्टोन है या आपका टाइल्स वाइल्स है तो उसके अंदर रबर बॉल को गीला करके अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को बोलो थोड़ा बॉल थ्रो करेगा, जस्ट प्रैक्टिस। स्किल कहीं पे भी नहीं जाता है। आशमान, Good evening, sir. Sir, I have a question that at home we can't do nothing. So what should we do? Keeping drills and batting drills in home also and after it at ground also. Keeping drill basically. अभी जैसे आप घर पे हो अश्मन, तो आपको आपके घर में कोटा स्टोन है या छत की कोई जगह है जहाँ पे नेट वेट लगा सकते हो आप, तो रबर बॉल से खेल सकते हो। रबर बॉल आई थिंक घर के अंदर सेफ होता है, उसको लेकिन गीला करके, उसको बाल्टी में गीला करके और किसी को बोलो कि कोटा स्टोन होगा या स्टोन के ऊपर फेंकेगा तो बहुत तेज आएगा, देन यू कैन प्रैक्टिस। और आपका एब्डोमेन गार्ड और आपके बैटिंग ग्लव्स लेके खेलना, जिससे कि क्योंकि वो बॉल बहुत जोर से लगता है। And sir, for keeping, कीपिंग भी आप कर सकते हो, आराम से अपना हाथ खोलो। कीपिंग में तो मुझे बड़ा मजा आता है आज भी, ये हाथ खोल के रखो, बॉल को आने दो, बॉल को देखो, बॉल को स्टंप करो, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है अगर आप इंजॉय करते हो दोनों चीजें तो। और बहुत ज्यादा लंबा कीपिंग नहीं करना है कि 1 घंटे तक कीपिंग कर रहे हो या बहुत लंबा टाइम कीपिंग कर रहे हो। 10-12 बॉल पकड़े आपने, फिर थोड़ा बैठ गए, फिर थोड़ी बात करी, फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग करी, फिर 10 बॉल पकड़े। आई थिंक वो रूटीन राइट आना चाहिए आपका। जो आपका टाइमिंग है ना, कीपिंग में भी बॉल के साथ उठने का टाइमिंग होना चाहिए। वो टाइमिंग अगर राइट बैठेगा तो मजा आएगा कीपिंग करने में। जैसा बैटिंग में रहता है ना कि बॉल छूटते ही वो टाइमिंग आना चाहिए, तो जब टाइमिंग आने लगेगा तो मजा आने लगेगा। तो वो एंजॉय करना है, उस चीज का प्रैक्टिस करना है। बहुत लंबा प्रैक्टिस भी नहीं करना है कि आप 4-4 घंटे तक प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने अगर 1 घंटा भी अच्छे से प्रैक्टिस किया उसको प्रॉपर तरीके से घर के ऊपर, तो आई थिंक दैट्स इनफ। फिर उसके बाद हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा स्किपिंग कर लो, स्किपिंग के साथ थोड़ा पुशअप्स लगा लो, थोड़ा सा कोर कर लो, थोड़ा बैक की स्ट्रेंथनिंग कर दो। इतना ये सब चीजें आप कर सकते हो। और क्या अभी, क्योंकि अभी कोविड है, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप कोई भी वायरस कैच ना करो। आपकी फैमिली भी वही चाहते हैं, सब छोटे बच्चे हैं अभी, तो आपकी फैमिली में भी ध्यान रख, अपने माँ बाप को वायरस लग पड़े, उनको फीवर आए, तो आपको वो ध्यान भी रखना है। घर पे भी खेलना है, एंजॉय भी करना है, आपको हर चीज करना है। आपको समझ में आया आपको आशमन? वो रबर बॉल को अगर आप गीला करके और किसी को बोलोगे आगे, और वो आप अगर आप पकड़ोगे उसको, कीपिंग वाली ड्रिल, वो कीपिंग के लिए भी अच्छी है, वो बैटिंग के लिए भी अच्छी है। वो दोनों के वो ड्रिल घर के लिए बहुत अच्छी है, उसमें नुकसान। Sir, can we also use tennis ball for practice at home? हाँ, यूज कर सकते हो। उसको गीला करके करना, गीला करके उसको गीला कर लेना, गीला बाल्टी में पानी रखना, उसको गीला करके और फिर खेलना sir. उससे। सर, हमें अगर कैचिंग की प्रैक्टिस करनी है तो दीवार के ऊपर थ्रो फेंक के कर सकते हैं, और बैटिंग की भी सेम ही वही बॉल मैंने बताया बेटे आपको, अभी मैंने सबको बोला कि रबर बॉल या टेनिस बॉल को गीला करके और खेलो। किसी को बोलो कि बॉल आपको थ्रो करेगा, आप उसको खेलो आराम से, मजा आएगा आपको। अगर आप उसको 12-15 कदम के डिस्टेंस पे खेलते हो तो बड़ा मजा आएगा आपको खेलने में, ठीक है। किसी को बोलना आके थ्रो करेगा गीला बॉल आपके पास में, तो आप खेलो उसको, फिर मजा आएगा आपको ड्राइव करने में, डिफेंस करने में। sir, at ground, what drill should we do for keeping and batting? ग्राउंड के ऊपर आप मैं करता था कि आप कैचेस पकड़ो थोड़े, आप स्लिप कैचिंग करो, आप वो ग्रास के ऊपर बॉल पकड़ो आराम से, 1 बाउंस बॉल पकड़ो, उससे अच्छा रहता है। वो आप करो, आपको मजा आएगा। बेसिकली आपको एंजॉय करना है। कीपिंग, फील्डिंग, ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आप एंजॉय करते हो तो आपको मजा आने लगता है। आपको मजा, किसी चीज में आपको मजा आता है तो आप ऑटोमेटिक वो बहुत अच्छा करने लग जाते हो। लेकिन अगर आपको बर्डन लगेगा वो कि यार कीपिंग बर्डन है, और वो बर्डन लगेगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा आपको। तो एंजॉय करना है बेसिकली। आप घर पे भी कुछ भी कर रहे हो, छोटा भी कर रहे हो, एंजॉय करो उसको।
कि सर आपका पहले एकेडमी क्रिकेट पे डिविजनल क्रिकेट, उसके बाद रणजी, फिर इंटरनेशनल, तो इस पूरे टाइम में आपका माइंडसेट और प्रिपरेशन कैसी थी? मैंने बताया ना, अभी इन्होंने इतने सारे क्वेश्चन किए थे, तो आपको प्रिपेयर ऊपर के लेवल के लिए। ध्रुव तिवारी, मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोला मैंने कि प्रिपरेशन हमेशा ऊपर के लेवल के लिए होता है, तो कभी नीचे प्रॉब्लम आएगा ही नहीं ना आपको, ना Yes. ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। है ना राजेश भाई? या नमन, बहुत सबके साथ बहुत में ऑल द एंजॉय किया, बेस्ट, सबको अच्छा करें। बहुत मजा आया आज नमन आपके साथ बात करके। बच्चों ने भी काफी कुछ अच्छा सीखा मजा होगा, आया, अच्छा उम्मीद है। इंटरेक्शन रहा लड़कों या के बहुत साथ है। या तो इतना Bye. बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जो इंडिया लेवल के प्लेयर से बात करने का, कि ऊपर के लेवल पे क्या है और सारी चीजें। अब इनको इससे कुछ सीखना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि दुनिया का सबसे सीख के महान कुछ आगे बल्लेबाज बढ़ेंगे, सचिन तेंदुलकर है ना? वही तस्वीर तो भेजता। या तो थैंक यू वेरी मच नमन, आप देव क्रिकेट Okay, एकेडमी की bye. तरफ से। Bye. या बाय बाय, थैंक्स बाय अ लॉट। सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू।